Dear students, welcome to NEET PYQ Trishul program Star Classes Latur. Myself Krishna sir, physics faculty. पूरा हीट पार्ट का PYQs में डिस्कस करने वाले. हीट पार्ट में क्वेश्चन लेवल भी इजी टू मॉडरेट लेवल रहा था. ऑन एंड एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस आने वाले. आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का PYQs डिस्कस करेंगे, राइट? सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम नीट 2016. 99 में आया, 95 में आया, बहुत बार आया है क्वेश्चन, रिसेंटली भी आया है क्वेश्चन. इसका रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने वाला. सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स आर alpha 1 and alpha 2. लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स, लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स L1 and L2. If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, उसका मीनिंग क्या है? सेम एट ऑल टेम्परेचर्स बोले तो व्हाट एवर द टेम्परेचर, ये दोनों का डिफरेंस सेम दिया उन्होंने ऐसा मेंशन किया. देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एल आस्किंग. इसके लिए फॉर एग्जांपल हम 2 रॉड्स लेंगे. द फर्स्ट रॉड का लेंथ L1 ले लो. बोथ आर नॉट सेम टाइप ऑफ मटेरियल, बोथ आर अलग अलग मटेरियल ले रहे. बोथ आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. These 2 rods ऐसे शोल्डरिंग किया. फर्स्ट रॉड का लेंथ L1, सेकंड रॉड का लेंथ L2. ओके, सी हियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रॉड इज alpha 1, second rod is alpha 2. See what is the difference between these 2 rods? L2 minus L1. x से डिनोट करो, x is equal to L2 minus L1. This value is same at all temperature बोल के इधर मेंशन किया हुआ. L2 minus L1 is maintained same at all temperatures. उसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड L1 एंड L2 का डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है. एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है. फॉर एग्जाम्पल नाउ द 2 rods are heated to 100 degree centigrade. Now the 2 rods are heated to 100 degree centigrade. At that time also gap is 5 centimeter only. दोनों एक्सपेंड होता बट दोनों का डिफरेंस सेम दिया. That is the meaning of question. L2 minus L1 is maintained same at all temperatures. We know that alpha का फार्मूला क्या है बेटा? We know that coefficient of linear expansion का फार्मूला alpha is equal to L2 minus L1 by L1 into delta T, right? Here L2 minus L1 बोले तो elongation or change in length, that is delta L by L into delta T. क्रॉस मल्टीप्लाई करो elongation के लिए, that is delta L is equal to alpha L into delta T. This is same बोल के दिया क्वेश्चन में, right ना? Now this formula we can apply for first rod as well as second rod. First rod का लेंथ L1, coefficient of linear expansion alpha 1. Second rod का लेंथ L2, coefficient of linear expansion is alpha 2. Substitute करो. So alpha जगह पे alpha 1, L जगह पे L1, दोनों का सेम टेम्परेचर दिया ना. delta T is same for both, is equal to सेकेंड रॉड के लिए L2 alpha 2 into delta T, right? So temperature difference is same, so delta T gets cancelled. We are getting the answer is alpha 1 L1 is equal to alpha 2 L2. That's it. So this is the final answer. So कौन सा option is right? Option D is correct, right? Important है. Same formula we can use for first question also. See here. Next, read that question. From previous question application इधर यूज करेंगे हम. A copper rod of length 88 centimeter दिया. Copper rod of length 88 centimeter. And aluminum rod of unknown length having their increasing length is independent of temperature. Increasing length is same at all temperatures बोल के उन्होंने दिया. See here copper rod का length दिया. ये asking length of aluminum rod. दोनों को linear expansion दिया रहा बेटा. copper के लिए कितना दिया? 1.7 into 10 power minus 5 per Kelvin. Aluminum के लिए 2.2 into 10 power minus 5 per Kelvin, right? Now same previous question का application इधर use करेंगे. We know that from previous question alpha 1 L1 is equal to क्या है? alpha 2 L2. See here
we can take L1 is for copper and L2 is for aluminum. We can write alpha copper into length of copper is equal to alpha aluminum into length of aluminum. Substitute all these values. Already you except length of aluminum सभी values दिया उन्होंने क्वेश्चन में. Substitute करो alpha of aluminum, alpha of copper क्या दिया? 1.7 into 10 power minus 5. Length of copper दिया है क्या दिया? 88 सेंटीमीटर दिया length of copper. 88 is equal to alpha of aluminum 2.2 into 10 power minus 5 into length of aluminum. Length of aluminum हम कैलकुलेट करना. Simplify करो. 10 power minus 5, 10 power minus 5 gets cancelled, right? Alpha of aluminum क्या मिलेगा from here? Cross multiply करो. Alpha of aluminum is equal to 1.7 into 88 upon 2.2. Point cancel कर सकते ना? So we can write 17 by 22. 22 ones are 22 fours are. So क्या मिलेगा? 17 into 4. 17 fours are बेटा कितना है? 68 centimeter. That is the final answer. So कौन सा option is right? Option D is correct. This is from NEET 2019. The next question. See here. The next question. The value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 power minus 4 per Kelvin. The fractional change in density of glycerin for rise of 40 degree centigrade temperature. So, change in temperature is given. Change in temperature क्या दिया? Change in temperature. So delta T is given as 40 degree centigrade. Coefficient of volume expansion भी दिया. Generally coefficient of volume expansion denoting with gamma symbol. Gamma is equal क्या दिया? 5 into 10 power minus 4 per Kelvin. We know that gamma formula in terms of volume. So what is the formula? Gamma is equal to final volume minus initial volume by initial volume into temperature difference. V2 minus V1 बोले तो change in volume ना, change in volume to original volume into temperature difference, right? ये याद रखो formula. So, but we know that volume and density का relation क्या है? Density, for example, density का symbol मैंने D ले ले, D is equal to mass upon volume. On heating mass change होता ना, मास चेंज नहीं होता. सो क्या होता? टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता. अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो डेंसिटी क्या होता? डिक्रीजेस, राइट? बोले तो वॉल्यूम में कितना चेंज है तो डेंसिटी में उतना चेंज होता, बट रिवर्स रेसिप्रोकल में चेंज होता. सो मास इज कांस्टेंट. सो सिंपली ये फार्मूला में हम चेंज करेंगे. ये फार्मूला वॉल्यूम फॉर्म से डेंसिटी फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे. सो गामा का फार्मूला क्या है? V2 जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? D1 माइनस D2 अपॉन D2 इंटू डेल्टा डी. फ्रैक्शनल चेंज बोले तो क्या लिखना? गामा इज इक्वल टू D1 माइनस D2 जगह पे डेल्टा डी बाई D इंटू डेल्टा डी. फ्रैक्शनल चेंज बोले तो क्या मेजर करना? डेल्टा डी बाई डी मेजर करना. डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल क्या होता है बेटा? गामा इंटू डेल्टा टी. गामा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. गामा वैल्यू उन्होंने दिया 5 इंटू 10 पावर माइनस 4. डेल्टा टी क्या दिया? 40. सिंप्लीफाई करो. 5 into 40 200. 200 into 10 power minus 4. 2 into 10 power minus 2. We can get that is 0.02. That's it. This is the answer. This is fractional change in density value. Sometimes percentage पूछते रहे. Percentage है क्या करना? Into 100 करना. बस. Right? This question is from NEET 2015. The next question. This is also from same previous question जैसा. The density of water at 20 degree centigrade is 998 kg per meter cube. At 40 degree centigrade. At 40 degree centigrade क्या दिया? At 40 degree centigrade, the density is given as 992 kg per meter cube. The coefficient of volume expansion of water is same formula. Previous question का formula इसका same formula है. So we know that gamma का formula क्या है? Gamma is equal in terms of density अभी लिखा ना हमने D1 minus D2 by D2 into delta D. Here D1 बोले तो density at 20 degree centigrade, D2 बोले तो density at 40 degree centigrade. So we can write density at 20 degree centigrade minus
Dense state 40 degree centigrade by dense state 40 into temperature difference. Right? Substitute करो values. Gamma is equal to D20 कितना दिया रहा 998 kg per meter cube. Dense state 40 degrees 992 upon dense state 40 992 into temperature difference 40 minus 20 कितना है रहा गैप कितना है 20. सिंप्लीफाई करो 998 minus 992 6 by 992 into 20. After simplifying we can get the answer 3 into 10 power minus 4 per degree centigrade. That's it. This is the answer. This is from NEET 2013. So gamma ka formula D1 minus D2 by D2 into delta T. The next question, this is from thermometry. On a new scale of temperature which is linear and called the W scale, the freezing point and boiling points of water are 39 degree W, 239 degree W respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degree centigrade on the Celsius scale? बोले तो ये अननोन स्केल है, स्केल का नाम क्या दिया W, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो क्या है लोअर फिक्स्ड पॉइंट. लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या दिया 39 डिग्री. अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या दिया 239 डिग्री अपर फिक्स्ड पॉइंट. सी हियर व्हाट एवर द स्केल कंडीशन क्या है रहा x माइनस अननोन स्केल है x. ये फार्मूला ऑल स्केल्स को यूज कर सकते हैं हम. x माइनस LFP बाई UFP माइनस LFP इज इक्वल टू कांस्टेंट. राइट ना. एक्चुअली क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. फॉर एग्जांपल ये सेल्सियस स्केल है, आपको पता है सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ अननोन स्केल क्या है, स्केल का नाम W. W का लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या दिया 39 डिग्री W, अपर फिक्स्ड पॉइंट इज गिवन एज 239 डिग्री W. सो और एक कंडीशन भी दिया व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल. इसमें टेम्परेचर पूछ रहे अननोन स्केल में. व्हेन टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी 39 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सेल्सियस स्केल. बोले तो सेल्सियस स्केल में 39 डिग्री सेंटीग्रेड है रीडिंग, इसमें कितना रहा था उसका W का वैल्यू पूछ रहे. समझ में आया क्या क्वेश्चन. सेल्सियस स्केल में लोअर वैल्यू दिया, ऑलरेडी आपको पता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट, उसमें रीडिंग कितना दे रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर सेल्सियस स्केल में रीडिंग 39 डिग्री है तो अननोन स्केल में कितना है. सो फाइनली ये रिलेशन यूज करना, ये रिलेशन ऑल स्केल्स को सेम ही है. सो इधर x जगह पे अननोन स्केल के लिए क्या लिखना W माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इन अननोन स्केल 39 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 239 माइनस 39 इज इक्वल टू ये फार्मूला सेल्सियस को भी अप्लाई करना. सेल्सियस में रीडिंग कितना दिया रहा 39 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है 0 अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो आंसर W माइनस 39 बाई 239 माइनस 39 कितना है 200 W माइनस 39 बाई 200 इज इक्वल टू 39 बाई 100. सो सिंप्लीफाई कर 100 1 जा 100 2 जा 2 इंटू 39 78 प्लस 39. सो आंसर क्या मिल जाएगा फाइनली W इज इक्वल टू 117 डिग्री. सो अननोन स्केल में रीडिंग कितना है 117 डिग्री. बोले तो वो बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में 39 डिग्री है तो अननोन स्केल में कितना, अननोन स्केल में कितना है 117 डिग्री. राइट. दिस इज फ्रॉम नीट 2008. द नेक्स्ट क्वेश्चन, read that question. This is from NEET 2018. The power radiated by, read the question properly. The power radiated by black body is P and it radiates maximum energy at a wavelength of lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at the wavelength of 3/4.
3/4 lambda naught. The power radiated by it becomes n times of original power. The value of n is. See here, before changing the temperature, wavelength kitna diya? Lambda naught. After temperature changes, wavelength B changes. कितना तक चेंज हुआ? 3/4 times of lambda naught. The power radiated by it becomes, he asking. See here, एक क्वेश्चन के लिए हम दो लॉस यूज करना. वन इज स्टीफेंस लॉ, सेकंड वन इज वीन्स लॉ. By using Stephen's law, we can find out, we can get the relation between power and temperature का relation आएगा. By using Wien's law, we can get the relation between wavelength and the temperature को relation आएगा. ये दो relation use करके हम final relation निकालेंगे. From Stephen's law, बताओ from Stephen's law, what is the Stephen's law? Stephen's law, power radiated by the body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. हमको पता है power का formula E सिग्मा ए इंटू टी पावर 4. सबको पता है ना फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसका रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चंस है, याद रखना ये फार्मूला. पी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए इंटू टी पावर 4. ई बोले तो क्या आ रहा है? एमिसिविटी. रिमेंबर ऑल ऑफ यू, एमिसिविटी फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 1. एमिसिविटी फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज 1. यहां से पावर एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. राइट ना? फ्रॉम वीन्स लॉ, वीन्स लॉ से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो मींस अभी हमको रिलेशन खाली पावर एंड वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए, इसलिए टी जगह पे हम 1/λ सब्स्टिट्यूट कर रहा. क्यों? हमको टेम्परेचर फॉर्म में नहीं दिया क्वेश्चन, पावर एंड वेवलेंथ फॉर्म में दिया. हमको पता है टेम्परेचर एंड वेवलेंथ रेसिप्रोकल. फ्रॉम कौन सा लॉ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट P is inversely proportional to lambda power 4. सो सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? P by P1 by P2, P1 वैल्यू P2 दिया, इज इक्वल टू lambda 2 by lambda 1 whole power 4. Wavelength in second case 2, wavelength in first case whole power 4. So P by P2 is equal to, simplify करो, lambda 2 क्या दिया second case में? 3/4 times of lambda naught. 3/4 lambda naught upon lambda naught whole power 4. lambda naught gets cancelled. 3 power 4 बोले तो 3 into 3 into 3 into 3, 9 9 9 is 81. 81 by 4 power 4 कितना है? 256. सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. P2 is equal to क्या मिलेगा? 256 upon 81 into P. So क्वेश्चन में उन्होंने दिया पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स n टाइम्स ऑफ P. So P2 is equal क्या दिया? n टाइम्स ऑफ. जस्ट कंपेयर करो, n जगह पे वैल्यू कितना है रहा? 256 by 81. So which option is correct? 256 by 81. The option D is correct. The next question. Say two rods A and B. Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. Both are different types of material. ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आना, लेंथ ऑफ द टू रॉड सेम, एरिया क्या होता है? रिजल्टेंट कंपोजिट रॉड के लिए एरिया डबल होता, लेंथ सेम ही रहता. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड. हियर टू रॉड्स आर देयर. फर्स्ट रॉड का लेंथ इज डी, एरिया ए ले लो. सेकंड रॉड का लेंथ इज डी, एरिया इज ए. कंपोजिट रॉड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी आस्किंग. सी हियर एक्चुअली टू रॉड्स कैसे है? टू रॉड्स कैसे है? पैरेलल में, राइट ना? सो बोले तो टोटल हीट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q1 Q2, राइट? Q इज इक्वल क्या होता है? टोटल हीट थ्रू द टू रॉड्स. फॉर एग्जांपल टोटल हीट Q है, Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q2. टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, फर्स्ट रॉड का एंड सेकंड रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस T1 minus T2 ओनली. सो यहां से Q इज इक्वल क्या आएगा? Q1 plus Q2. What is the Q का फार्मूला? फ्रॉम थर्मल कंडक्टिविटी, Q by T is equal to K into A into theta 1 minus theta 2 by D. So Q1 के लिए, Q2 के लिए देखो, Q के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो. Q के लिए, Q1 के लिए क्या होता? Q1 के लिए
कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट रॉड क्या है K1, एरिया इज सेम है K1 इंटू ए इंटू थीटा सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा 2 जगह पे क्या है T1 माइनस T2 इंटू T बाई D। सेकंड केस के लिए Q2 के लिए क्या है Q2 के लिए K2 A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T बाई D। सो कॉम्पोजिट रॉड के लिए क्या करना, कॉम्पोजिट रॉड के लिए K जगह पे K पैरेलल लिखो, एरिया क्या होता रहा एरिया A प्लस ए, कॉम्पोजिट रॉड बोले तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, A प्लस ए क्या होता 2A, एरिया डबल होता बट लेंथ इज रिमेन्स सेम। सो कॉम्पोजिट रॉड के लिए Q लिखो, Q इज इक्वल टू K पैरेलल इंटू एरिया कितना है 2A, अगेन टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन लेंथ इज सेम। अभी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू क्या आएगा, सो Kp इंटू 2A इंटू T1 माइनस T2 बाई D इज इक्वल क्या होता है, इधर भी सेम है K1 इंटू A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T बाई D प्लस K2 इंटू A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T बाई D। सिंप्लीफाई करो सब कैंसिल होता, सो क्या मिलेगा 2 इंटू Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2 मिलेगा, सब कैंसिल होने के बाद सो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या मिलेगा K1 प्लस K2 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Kb इक्वल क्या आएगा K1 प्लस K2 बाई 2। सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट राइट। नाउ द टू रॉड्स कैसे है पैरेलल में, पैरेलल में द नेट हीट इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2, हीट फ्लोज थ्रू द फर्स्ट रॉड प्लस सेकंड रॉड, पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस इज रिमेन्स सेम, लेंथ इज रिमेन्स सेम, एरिया क्या होता रहा डबल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical black body with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power दिया at 500 Kelvin. If the radius were half and the temperature doubled, the power radiated in what would be? This question is from NEET 2017. This is also from Stephen's law. We have to get the relation between power, radius and temperature का, ये तीनों का बीच में रिलेशन चाहिए हमको। So what is the Stephen's law? ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन को देखा, फ्रॉम स्टीफेंस लॉ। बताओ रे फार्मूला, स्टीफेंस लॉ क्या है, फार्मूला क्या है पावर का, P इज इक्वल टू E सिग्मा A इंटू T पावर 4। E बोले तो क्या है एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितना है 1, नो नीड टू टेक, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट वो भी नहीं लेना। सो P इज इक्वल टू, फार्मूला कैसे लिख सकते हैं हम, E सिग्मा इंटू, ये कौन सा शेप है बॉडी, स्पेरिकल शेप है, एरिया ऑफ द स्फीयर फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इंटू T पावर 4। ये सभी कांस्टेंट्स है ना, हमको किसको किसको बीच में रिलेशन चाहिए, पावर, रेडियस एंड टेम्परेचर, रिमेनिंग all quantities are constants right। from here we can write power is directly proportional to square of temperature and directly proportional to fourth power of absolute temperature। यहां से हम दो केसेस के लिए रिलेशन लिख सकते हैं, लिखो क्या आएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 होल पावर 4 इंटू T1 बाई T2 सॉरी R1 बाई R2 होल स्क्वायर है, R1 बाई R2 होल स्क्वायर है, T1 बाई T2 होल पावर 4। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, इनिशियल पावर कितना दिया रहा बेटा, देखो क्वेश्चन में व्हेन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, टेम्परेचर इज 500, पावर कितना दिया 450। सो P1 T1 R1 राइट। नेक्स्ट क्या दिया, रेडियस आधा दिया रहा, रेडियस आधा बोले तो 12 क्या होता 6 है, टेम्परेचर क्या दिया डबल, डबल बोले तो 500 से डबल कितना है 1000 राइट। सो P1 जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना 450 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, R1 क्या दिया रहा 12, R2 क्या दिया रेडियस हाफ दिया ना, आधा हुआ, आधा है तो 12 में आधा कितना है 6 होल स्क्वायर, टेम्परेचर क्या दिया रहा बेटा, टेम्परेचर डबल बोल के दिया। सो इनिशियल टेम्परेचर 500 है, उसका डबल बोले तो 1000 होल पावर 4 राइट ना, ये 2 टाइम्स है,
ये 2 टाइम्स है, सो 2 स्क्वायर कितना है 4 रहा, 4 इंटू 1/2 क्या आता 16 आता, 4 1 जा 4 4 जा 1/4, सो बोले तो 450 बाई P2 इज इक्वल 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P2 इक्वल क्या आता 450 इंटू 4, 450 इंटू 4 कितना है रहा 452 जा 900, 900 इंटू 2 1800, सो पावर कितना दिया, कितना है आंसर 1800 वाट्स है, राइट। फर्स्ट केस में 450 है, व्हेन रेडियस ऑफ एंड टेम्परेचर डबल होने के बाद पावर कितना मिला हमको 1800 वाट्स, दैट्स इट। ये सब ये रिलेशन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फार्मूला ओनली, P is equal to E sigma A into T power 4. The next question, next question देख रहे, a black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at a wavelength of 250 nanometer is U1. 250 nanometer के लिए wavelength कितना है U1. At 500 nanometer, sorry, energy U1. At 500 nanometer energy is U2 and that of 1000 nanometer के लिए U3. Actually एक ग्राफ कैसे रहता है, एनर्जी एंड वेवलेंथ का ग्राफ ऐसा रहता है, हम ऑलरेडी हमको पता है, हम क्या चेक करना इधर, ये तीनों में कौन सा वेवलेंथ को मैक्स एनर्जी आता है वो कैलकुलेट करना, ये कौन सा लॉ यूज करके मेजर करना, हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमको पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फ्रॉम वीन्स लॉ, फ्रॉम वीन्स लॉ, वीन्स लॉ क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई, सॉरी देखो लैम्डा इज इक्वल क्या है फार्मूला डायरेक्टली, लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल निकलने के बाद कांस्टेंट आएगा, दैट इज वीन्स कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू 2.88 इंटू 10 पावर 6, ए नानोमीटर केल्विन है, नानोमीटर बोले तो हाउ मेनी मीटर्स 10 पावर -9, टेम्परेचर भी दिया कितना है 5600 केल्विन, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग द आंसर इज 500 नानोमीटर, बोले तो 500 नानोमीटर को एनर्जी मैक्सिमम आएगा, एनर्जी नॉट मैक्सिमम फॉर 250 नानोमीटर, 1000 नानोमीटर की मैक्सिमम है, कौन सा वेवलेंथ को मैक्सिमम एनर्जी 500 नानोमीटर को ज्यादा है, सो 500 नानोमीटर के लिए क्या है U2, 250 नानोमीटर के लिए U1, 1000 नानोमीटर के लिए U3, सो फाइनली ये ग्राफ से हमको कंक्लूजन क्या है, U1 इज लेस देन U2 एंड ग्रेटर देन U3, सबसे ज्यादा किसको है U2 को वैल्यू ज्यादा है, सो U1 0, ये फर्स्ट ऑप्शन गलती है, U3 भी 0 नहीं है, कुछ तो एनर्जी है, U1 is greater than U2, but U2 को ज्यादा है ना, ये भी गलती है, so कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, U2 is more than U1 as well as more than U3. Next question, the next question, this is from NEET 2016. A piece of ice falls from a height h so that it melts completely, पूरा मेल्ट हुआ है, certain height से fall होने के बाद पूरा मेल्ट हुआ, only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice, मतलब पूरा कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें ओनली 1/4 ओनली ऑब्जर्व किया, 1/4 यूज करके पूरा मेल्ट हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ हाइट, कितना हाइट से फॉल है तो इतना यूज होता, पूछ रहे क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम जूल्स लॉ है, व्हाट इज द जूल्स लॉ, whenever the work is done against the friction heat energy is generated, we know that formula from Joule's law, W is directly proportional to Q, बोले तो here body कितना हाइट से फॉल हो रहा, h हाइट से फॉल हो रहा, कितना हाइट से फॉल हो रहा h हाइट, when the body is falling, बॉडी को कौन सा एनर्जी रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, that potential energy only utilized to melt the ice, बट पूरा एनर्जी यूज नहीं हो रहा, ओनली 1/4 बोले तो 1/4 ऑफ एनर्जी यूज करके पूरा मेल्ट हो रहा, राइट ना, सो इसलिए W जगह पे क्या लिखना है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों ना mgh, आइस मेल्ट हुआ बोले तो चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, चेंज ऑफ स्टेट के लिए फार्मूला क्या है, लेटेंट हीट फार्मूला, L इज इक्वल टू Q बाई M, Q इज इक्वल क्या आएगा M इंटू L, तो यूज करो Q जगह पे M इंटू L लिखो, बट कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं हम
ओनली 1/4 ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, सो लेफ्ट साइड 1/4 लिखो, mm गेट्स कैंसिल, ये आस्किंग h ओनली ना, हाइट कितना हाइट से फॉल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4l/g, सो 4 इंटू लेटेंट हीट क्या दिया रहा, लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.4 इंटू 10 पावर 5 अपॉन g वैल्यू कितना दिया 10, सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, 10 पावर 4 इंटू 3.4 इंटू 10 पावर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 34, 10 पावर 3 लिखो, ये 34 लिखो, 34 4 जा 136, सो आंसर इज 136 किलोमीटर आएगा आंसर। सो कितना हाइट से फॉल हो रहा, 136 किलोमीटर से फॉल हो रहा, सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, an observing light from 3 different stars P, Q and R, it was found that intensity of violet color is maximum in the spectrum P, spectrum P में violet color का maximum दिया, intensity of green light is maximum in the spectrum R and the intensity of red color is maximum in the spectrum of Q, right ना, so हमको पता है रे कौन सा कलर को वेवलेंथ ज्यादा रहा था, रेड कलर को ज्यादा रहा था, वायलेट कलर को कम रहा था, so बोले तो wavelength of violet is greater than wavelength of green na, next one green color and next one is red color, बोले तो we know that lambda and t का relation क्या है from Wien's law, lambda is inversely proportional to absolute temperature, so wavelength ज्यादा है तो temperature must be कम, so wavelength किसको ज्यादा है, रेड कलर को ज्यादा है, बोले तो Q को ज्यादा है, Q को ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर सबसे कम रहा था, वायलेट को वेवलेंथ कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा रहा था, सो क्या है, सो टेम्परेचर ऑफ वायलेट इज मोर, टेम्परेचर वायलेट के लिए P है, रेड कलर के लिए Q है, राइट ना, सो व्हिच इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, TP is greater than TR is greater than TQ because lambda is inversely proportional to temperature, wavelength of violet is, sorry गलती लिखा ना, wavelength of red is more, wavelength of red color is, wavelength of red is greater than wavelength of green is greater than wavelength of violet, right ना, lambda is inversely proportional to the, so क्या आएगा फाइनली, रेड कलर के लिए Q है, वायलेट के लिए P है, so temperature of P is more than that of temperature of Q, बीच में R रहा, so which option is right, first option is correct, so next question, this is from thermal conductivity, next, this is from NEET 2015 na beta, the two ends of a metal rod are maintained at temperatures 100 degrees and 110 degrees centigrade, the rate of heat flow in the rod is found to be, rate of heat flow बोले तो Q by T रहा, rate of heat flow is given as Q by T, Q by T is कितना दिया 4 जूल पर सेकंड फर्स्ट केस के लिए, if the ends are maintained at temperatures 200 and 210, so बोले तो फर्स्ट केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया, फर्स्ट केस में देखो ये 110 डिग्रीज हॉट एंड एक कोल्ड एंड है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड केस में देखो when the 110 degrees and 100 degrees difference, how much amount of heat flow or 4 joule per second, सेकंड केस में उन्होंने क्या दिया, one end is maintained at 210 degree centigrade, other end is maintained at 200 degree centigrade, ये दोनों का बीच में गैप भी 10 degree centigrade होंगे, राइट ना, रिमेनिंग ऑल क्वांटिटी सेम हो रहा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो रेट ऑफ हीट फ्लो भी सेम रहा, सो वी नो दैट फार्मूला Q by T is equal क्या है, K into A into theta 1 minus theta 2 by D रहा, इसमें लेंथ ऑफ द रॉड चेंज हुआ क्या, लेंथ ऑफ द रॉड तो सेम है, राउंड ऑफ कीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, K भी सेम है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी सेम है, तो सब सेम है तो Q by T आल्सो सेम, बोले तो फर्स्ट केस में 4 जूल पर सेकंड है तो सेकंड केस में भी उतना ही रहता, क्यों, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम इन बोथ केसेस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम,
length भी same है, material भी same है, rate of heat flow also must be same. So answer is 4 joule per second. आसान क्वेश्चन है. The next question. देखो, steam at 100 degree centigrade is passed into 20 grams of water at 10 degree centigrade. When water acquires a temperature of 80 degree centigrade, the mass of the water present will be, before steam is adding, what is the mass of the water? 20 grams. 20 grams of water को steam add किया, कितना कितना टेम्परेचर पे steam 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड किया, then when the water temperature कितना तक raise हुआ? 80 डिग्री तक raise हुआ, then mass of the water present will be. बोले तो temperature of the water from 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए कुछ तो कुछ स्टीम वाटर होता, पानी होता, वो कितना है पूछ रहे. वो कितना, मतलब स्टीम का मास मेजर करने के बाद पूरा वाटर का मास पूछ रहे. ऑलरेडी मास कितना है? 20 ग्राम्स है. अभी हम क्या मेजर करना? कितना स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो मेजर करना. सो इधर मैंने ऑलरेडी लिखा, हीट लॉस्ट बाय m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू चेंज इनटू वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने के लिए कितना हीट एनर्जी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल हमने m ग्राम्स लिया, हमको कितना पता नहीं, m ग्राम्स ऑफ स्टीम ओनली कन्वर्टेड इनटू वाटर, ml प्लस ms डेल्टा थीटा. Q1 कैलकुलेट कर रहे पहले, मास पता नहीं ना, m लिखो. लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना है? 540 प्लस m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 1. टेम्परेचर डिफरेंस कितना है रे? 100 माइनस 80. स्टीम का टेम्परेचर 100 है, कहां से कहां तक जा रहे हैं? 100 टू 80 तक जा रहे हैं. डिफरेंस कितना है? 20. सो कितना है रे? 540m प्लस 20m कितना है? 560m. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, ये हीट एनर्जी यूज करके पानी का टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड. बोले तो इधर क्या हो रहा? स्टीम हीट लूज हो रहा, वाटर हीट गेन हो रहा. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी. सो वाटर का टेम्परेचर के कहां से कहां तक चेंज हुआ? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके लिए Q2 का फॉर्मूला क्या है? ms डेल्टा थीटा. m वैल्यू कितना है? 20. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1. सो कहां से कहां तक चेंज हुआ? 10 टू 80 को गया. डिफरेंस कितना है? 70. 70 इंटू 20 कितना है? 1400 कैलोरीज. ये 1400 कैलोरीज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम ओनली. ये दोनों इक्वेट करो, कितना स्टीम यूटिलाइज करके 1400 कैलोरीज आया आंसर. सो 1 इज इक्वल टू, इक्वेट करो, 560 m इज इक्वल टू 1400. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर? 1400 बाय 560 वी आर गेटिंग, दैट इज 2.5 ग्राम्स ऑफ वाटर. बोले तो 2.5 ग्राम्स ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. ऑलरेडी वाटर कितना दिया? इनिशियली 20 ग्राम्स है. ये 20 को 2.5 ऐड करो, टोटल वाटर बोले तो 20 प्लस 2.5 कितना है? 22.5 grams. So total water present will be 22.5 grams. The next question. Two metal rods, 1 and 2 of same length, have same temperature difference between their ends. Their thermal conductivities are K1 and K2, and cross-sectional areas are A1 and A2 respectively. The rate of heat conduction in the rod 1 is 4 times that of rod 2. बोले तो Q by T. फर्स्ट केस में फर्स्ट रॉड के लिए जो हीट फ्लो इज देयर ना, दैट इज कितना टाइम्स ऑफ सेकंड रॉड दिया? 4 टाइम्स दिया है, राइट ना. इसमें क्या क्या दिया? सेम लेंथ, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, राइट ना. सो पहले Q by T ऑफ फर्स्ट रॉड कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट जनरल फार्मूला क्या है Q by T के लिए? K इंटू A इंटू θ1 माइनस θ2 बाय d रहा. सो फर्स्ट रॉड के लिए अप्लाई करेंगे. पहले ये इक्वेशन नंबर 1 लिखो, बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फर्स्ट रॉड के लिए Q by T ऑफ 1 इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट रॉड K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, लेंथ सेम ओनली ना, d लिखो. Q by T ऑफ 2 सेकंड रॉड के लिए K2 A2 इंटू θ1 माइनस θ2 बाय d. टेम्परेचर डिफरेंस सेम दिया, लेंथ ऑफ द टू रॉड्स भी सेम दिया. ये दोनों अभी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट किया है तो क्या आएगा? K1 A1 इंटू
θ1 minus θ2 by d is equal to 4 times of k2 a2 into θ1 minus θ2 by d. देखो रे θ1 minus θ2 by d gets cancelled left and right side. Finally क्या मिलेगा हमको आंसर? k1 a1 is equal क्या है 4 k2 a2. That's it. This is the answer. So कौन सा option is right? k1 a1 equal 4 k2 a2. The option B is correct. The next question. Next question देखो रे. The radius of star is r and it acts as a black body. What would be the temperature of the star in which rate of energy production is q? It is also from Stephen's law. Most of the questions from Stephen's law only. We know that P is equal formula क्या है? E sigma A into T power 4. Right now. So P is equal to star का shape कैसे रहता है? Sphere only ना. So E sigma into 4 pi r square into T power 4. He asking temperature. So emissivity of black body star बोले तो black body वन ना E वैल्यू कितना है 1 ले लो E वैल्यू 1 है हमको P जगह पे क्या दिया the rate energy produced is Q Q is equal to E जगह पे 1 लिखो रहा sigma into 4 pi r square into T power 4 देखो sigma बोले तो क्या है Stephen's constant separate करो cross multiply करो T power 4 is equal क्या मिलेगा Q by sigma into 4 pi r square. अब power 4 right side लेके आओ क्या होता T is equal to Q by sigma into 4 pi r square whole power 1 by 4 answer. This is the final answer. कौन सा option is right? Option D is correct. That's it. Next question. A slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter is exposed on the lower surface to steam at 100 degrees centigrade. A block of ice at 0 degrees centigrade rests on the upper surface of the slab. In 1 hour 4.8 kg of ice is melted. बोले तो 1 hour में कितना ice melt हुआ? Temperature difference 100 degree centigrade की वजह से 4.8 kg of ice melt हुआ. The thermal conductivity of the slab. Latent heat भी दिया रहा. Thermal conductivity का symbol क्या है? K. K asking. We know that Q by T का formula क्या है? Rate of heat flow का formula. Q by T is equal to K into A into temperature difference upon thickness. So इधर ice melt हुआ ना रे. Latent heat formula use करना पड़ेगा. So L is equal formula क्या है? Q by M. यहाँ से Q is equal क्या होता है? ML. Substitute करो value. ML by T is equal to you asking time भी दिया ना 1 hour K into A into θ1 minus θ2 by D सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मास कितना दिया रहा बेटा मास 4.8 लेटेंट हीट कितना है रहा 3.36 into 10 power 5 अपॉन टाइम 1 hour ना सेकंड में कन्वर्ट करना 1 hour इक्वल हाउ मेनी सेकंड्स 3600 seconds is equal to K into area 0.36 रहा मैंने सिंप्लीफाई करके 36 into 10 power minus 2 लिखता हूं into टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 minus 0 100 के लिए 10 power 2 लिखो बाय थिकनेस 0.1 ना मैंने 10 power minus 1 लिखने वाला so सिंप्लीफाई करो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we can get the K value is 1.24 joule मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स आएगा दैट्स इट ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है तो खाली क्यू जगह पे क्या यूज करना एमएल यूज करना दैट्स इट सो नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिलेंडर मेटालिक रॉड इन थर्मल कांटेक्ट विथ टू रिजर्वायर्स ऑफ हीट एट टू एंड्स कंडक्ट्स एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू इन टाइम टी बोले तो इन टाइम टी में कितना हीट कंडक्ट हो रहा क्यू हीट द मेटालिक the metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted? Remember, बोले तो सिलेंडर का रेडियस आधा हुआ रेडियस आधा है तो लेंथ बढ़ते रहता बराबर है क्या देन सेकंड केस में हीट कंडक्शन कितना है पूछ रहे सी हियर ये दो केसेस में बिफोर रेडियस आधा आफ्टर रेडियस आधा वॉल्यूम तो चेंज होता क्या
वॉल्यूम तो फिक्स ही रहा था ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होता. वी नो दैट वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वी नो दैट वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? एरिया इंटू लेंथ. एरिया जगह पे पाई आर स्क्वेयर इंटू एल रहा. बोले तो ये पाई R1 स्क्वेयर, वॉल्यूम तो सेम वाली ना, R1 स्क्वेयर L1 इज इक्वल टू R2 स्क्वेयर L2 लिख सकते हैं ना, राइट ना. सेकंड केस में रेडियस क्या हो रहा? रेडियस क्या हुआ? R1, रेडियस आधा बोले तो R1 स्क्वेयर बाय 4 होता ना, R2 जगह पे R1 बाय 2 होल स्क्वेयर इंटू L2 रहा. सो लेंथ क्या होता? R1 स्क्वेयर गेट्स कैंसिल ना. सो लेंथ कितना है? 4L1. उसका मीनिंग समझ में आया क्या? रॉड का रेडियस आधा हुआ, रॉड का रेडियस आधा हुआ, लेंथ क्या हुआ? 4 टाइम्स हो रहा, बिकॉज वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, वॉल्यूम तो फिक्स है. रॉड का रेडियस आधा है तो उसका लेंथ कितना बढ़ते रहा था? 4 टाइम्स बढ़ते. सो अभी फार्मूला लिखेंगे. वी नो दैट फ्रॉम थर्मल कंडक्टिविटी फार्मूला Q by T is equal to K into A into theta 1 minus theta 2 by L length. So Q is directly proportional to area and inversely proportional to length. एरिया बोले तो R स्क्वेयर लिखो, R स्क्वेयर बाय L. दो केसेस के लिए, फर्स्ट केस के लिए Q1, सेकंड केस के लिए Q2. R1 by R2 होल स्क्वेयर इंटू L2 by L1 रहा. सब्स्टिट्यूट करो. L2 जगह पे कितना है हमको? 4L1. R1 स्क्वेयर बाय कितना था? R2 आधा हुआ ना, R1 स्क्वेयर बाय 4, 4 ऊपर जाते हैं इंटू L2 जगह पे कितना मिले हमको? ऑलरेडी हमने सॉल्व किया. 4L1 by L1. L1 गेट्स कैंसिल, R1 स्क्वेयर गेट्स कैंसिल. 4 4 जा 16. सो Q by Q2 इज इक्वल टू 16. Q2 इज इक्वल क्या मिलेगा? Q by 16. सो कंडक्शन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. बाई हाउ मेनी टाइम्स डिक्रीज हुआ? 16 टाइम्स. सो आंसर इज बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट फार्मूला रिलेटेड है. टू एंड्स ऑफ ए rod of length L and a uniform cross sectional area A kept at two temperatures T1 and T2. The rate of heat transfer dQ by dt through the rod in the steady state. ये डायरेक्ट फार्मूला है. Q by T का फार्मूला क्या है? K इंटू A इंटू थीटा 1 माइनस जगह पे इधर T1 माइनस T2 दिया, लेंथ जगह पे L दिया. तो कौन सा ऑप्शन देखो? Q by T is equal to K into A into T1 minus T2 by L. So option C is correct. Next. A black body at 227 degrees centigrade radiates heat at the rate of 7 calories per centimeter square second. बोले तो T1 दिया रेट, व्हाट टेम्परेचर? डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. 227 प्लस 273 कितना आएगा? 500 केल्विन्स, राइट ना. सो हीट एट द रेट ऑफ 7 कैलोरी. बोले तो Q by TA दिया रहा, Q by TA ऑफ 1, उसका वैल्यू P1 बोल के ले लो. हीट फ्लो पर सेकंड पर यूनिट एरिया P1 ले रहे मैं, दैट वैल्यू 7 कैलोरी सेंटीमीटर इनवर्स टू सेकंड इनवर्स 1, राइट ना. सो टेम्परेचर 727 डिग्री है तो Q by TA वैल्यू कितना है? सिंपल. सो T2 का क्या है? 727 प्लस 273 केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना मिलेगा? 1000 केल्विन्स. सो P2 ले रहे हैं. दिस आल्सो फ्रॉम स्टीफेंस लॉ. रहे स्टीफेंस लॉ से पावर एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? We know that P is directly proportional to fourth power of temperature. So P1 by P2 is equal क्या है? T1 by T2 whole power 4. Initial क्या दिया है? 7. 7 by P2 is equal to initial temperature क्या दिया? 500 by 1000 whole power 4. So क्या मिलेगा? 500 how many times? 2 times. कितना आएगा? 16 ना. 1 by 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 16 7 जा कितना आ रहा? 112 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स. So that is the answer. कौन सा ऑप्शन इज राइट? B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी रिलेटेड है क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर ऑफ करंट्स. करंट क्या दिया है? 4 एम्पियर्स एंड 220 वोल्ट्स. So voltage भी दिया 220 volts. How much time will it take? Time he asking. How much time it will take to boil 1 kg of water? 1 kg from temperature 20 degree centigrade.
the temperature of boiling water is 100 degree. So delta theta कितना है? 100 minus 20 कितना है? 80 degree centigrade. Okay, he asking time. So from Joule's law we know that Q is equal formula क्या है रहा? Joule's law से ms delta theta. Delta theta बोले तो difference of temperature. From Joule's law we can write Q is equal to power into time. ना रे power का formula energy by time. Energy equal to power into time is equal to ms delta. This is from current electricity से आते रहे. Power का formula voltage into current. Simplify करो. V into I into T is equal to ms delta theta. आपको टाइम चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ms delta theta by V into I. बट आंसर हमको सेकंड में आएगा रे. हमको आंसर मिनट्स में चाहिए ना. So 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. So dividing with 60 to convert it into minutes के लिए 60 से डिवाइड करना. m वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 1 kg ना, m वैल्यू 1 है. m वैल्यू 1 kg. 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 4200. डेल्टा थीटा 80 by V is 220 into current is 4. Current is 4 and 1 by 60. 4 how many times? 20 times. 20 how many times? 3 times. 3 14 times. Okay na? 1400 by 220. 1400 by 220 approximately 6.3 minutes. That's it. So कौन सा option is right? Option A is correct. The next question. A black body at 727 degree centigrade. So T1 क्या दिया है? 727 plus केल्विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 273. कितना है? 1000 kelvins. Emits energy at the rate which is proportional to. Energy proportional to आपको पता है T power 4 ना, from Stephen's law. So E is directly proportional. T बोले तो 1000 whole power 4. कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन ए इज राइट. बहुत आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट. A black body at 1227 degree centigrade emits radiations with maximum intensity of wavelength is 5000 angstroms. So lambda 1 is given as 5000 angstroms. कौन सा टेम्परेचर पे? 1227 plus 273 कितना आएगा? 1500 kelvins. Right now. Next, the temperature of the body increased by दिया, not increased to voice. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज्ड बाय दिया है बोले तो ऑलरेडी 1227 है, उसको 1000 ऐड करना पड़ेगा. नहीं तो डायरेक्टली 1500 को 1000 ऐड करो. कितना आएगा? 2500 के लिए. इंक्रीज्ड बाय नॉट इंक्रीज्ड टू. इंक्रीज्ड बाय बोले तो इनिशियल टेम्परेचर को 1000 ऐड करना पड़ेगा. कितना है? डायरेक्टली 1500 को 1000 ऐड कर क्या मिलेगा? 2500 केल्विन. नाउ मैक्सिमम इंटेंसिटी आस्किंग लैम्डा 2. सो फ्रॉम वीन्स लॉ लैम्डा एंड टी का रिलेशन क्या है? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सिंपलीफाई करो क्या मिलेगा आंसर? लैम्डा 1 by लैम्डा 2 इज इक्वल टू T2 by T1 ना. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. लैम्डा 1 5000 दिया by लैम्डा 2 इज इक्वल टू T2 वैल्यू 2500 by 1500. सिंपलीफाई करो 2500 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1500 into 2 कितना है? 3000 angstroms. That's it. So कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. 3000 केल्विन. नेक्स्ट. Which are the following circular rods given radius r and length l, each made of the same material, whose ends are maintained at same temperature, will conduct most heat? A pointer. most heat कौन सा वाला most heat conduct करते पूछ रहे क्वेश्चन. We know that Q by T का फार्मूला क्या है? Q by T is equal to K into A into theta 1 minus theta 2 by D. Is it right? इसमें क्या क्या सेम दिया देखो. टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और मेटीरियल भी सेम है रहा, K भी सेम. सो किसको किसको रिलेशन है रहा? एरिया और थिकनेस का रिलेशन. एरिया जगह पे पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम. सो Q by T
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर बाई टी। उसका मीनिंग क्या है ना, आर जगह पे डी जगह पे एल दिया होता, आर स्क्वेयर बाई एल। टू कंडक्ट मोर हीट कंडक्ट करने के लिए लेंथ मस्ट बी लेस आना चाहिए, रेडियस मस्ट बी ज्यादा आना चाहिए। बोले तो फॉर कंडक्ट, टू कंडक्ट मोर हीट, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टू कंडक्ट मोर हीट के लिए रेडियस मस्ट भी ज्यादा, लेंथ मस्ट भी कम है। क्यों? ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा रहता, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू भी ज्यादा रहता। बोले तो रेडियस ज्यादा है तो हीट फ्लो ज्यादा रहता, लेंथ ज्यादा है तो हीट फ्लो कम रहता है। अभी ऑप्शंस देखेंगे, इसमें फर्स्ट ए एंड सी में रेडियस कम है, डायरेक्टली रॉन्ग है। अभी बी एंड डी में ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बी एंड डी में रेडियस दोनों में सेम है रे, बट लेंथ किसको कम है तो वो आंसर करेक्ट है। देखो लेंथ डी में करेक्ट है, डी में कम है क्या, डी बी में कम है क्या, डी में कम है, बी में कम है लेंथ, लेंथ कम है तो कंडक्ट मोर हीट। रेडियस दोनों को सेम है, ये वैल्यू दोनों को सेम है, खाली ये दोनों चेक करना। लेंथ किसको कम है, बी को कम है, डी से कंपेयर किया था, लेंथ कम है तो कंडक्ट्स मोर हीट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, दैट्स इट।